Good afternoon, all participants. I welcome all of you today online workshop for coaches and players. Today is our topic injury prevention and muscular strengthen in sepak takraw. And today our lecturer is Dr. Ashmi Dev Datta. So I welcome Dr. Ashmi Dev Datta and hand it over to you. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. I myself, Dr. Ashmi Dave Datta. I'm going to carry out today's online workshop. So I would like to start with, first of all, thanking Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to boost our sports in such a way that we all are so much motivated towards the sports. Next is our Honorable Sports Minister Kiren Rijiju ji for motivation and bringing lot many changes in the sports in India. I am thankful to Asian Sepak Takraw Federation and the President of Asian Sepak Takraw Federation, Sports Authority of India, and Indian Sepak Takraw Federation for giving me opportunity to speak and share our knowledge in this lockdown period. I am very happy that we have arranged such a good thing, such a good workshop in this lockdown period where maybe all the players must be missing their fields. But I am sure that everyone would be well motivated with this online workshop. So now I come to my introduction. I am Dr. Ashmi Dave Datta. I've done masters in sports and musculoskeletal physiotherapy. I've been associated with Sports Authority of India since long time, and I was with in national camp of Sepak Takraw. I have attended around 3 to 4 national camps with Sepak Takraw, and I was with World Cup in 2017 for men's and women's team in Sepak Takraw. So I'm thanking to everyone for giving this opportunity to me to carry out this webinar. So my topic is prevention of injury and role of muscle conditioning in Sepak Takraw. So first of all, guys, let me tell you the way skills, flexibility, strength is important for a player. In the same way, injury plays a major role in a player's life. Okay, so injury एक player को बना भी सकता है और injury एक player को बिगाड़ भी सकता है. So as a physiotherapist जब हम देखते हैं injury की तरफ, तो हमें injury किस तरीके से दिखती है? So first of all, we see injury as old injuries. Then we see as current injuries, and then we see it as future injuries. So in old injuries, if the normally we have seen that when the child is playing, when the players are at a smaller level, at that time they are not that much connected with the coach, or they have a fear. So many a times it happens that players do not open up completely and share injuries with coaches, and because of that what happens, old injuries come into the picture. जब old injuries को हम ठीक से rehabilitate नहीं कर पाते हैं, तब वो हमारी current injuries में convert हो जाती है. So when old injury we do not rehabilitate it properly, it comes into present, and in present it becomes difficult for a physiotherapist for rehabilitating the patient, because already the level of injury has increased. जब यहाँ पे ही अगर आपने हमको बता दिया एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आपने हमको प्लेयर ने बता दिया कि मैम मुझे इस टाइम पे इंजरी है, तो जब आप करंटली हमारे पास आएंगे तो आप इंजरी फ्री होंगे, फ्रेश इंजरीज लेकर आएंगे. अगर ओल्ड इंजरीज में आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया अच्छे से, तो करंट में वो हमारे पास बढ़कर आ जाती है.
it increases the level and it comes. Even if you hide in current injuries, if you do not, if you know, like players are normally having this sport spirit. Okay, छोड़ यार, it's okay, it's fine, मुझे कुछ नहीं हुआ है, या इतना तो चलता है, या ऐसे करके भी कई बार इग्नोरेंस हो जाती है इंजुरी की तरफ. तो छोटी छोटी चीजों में भी अगर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, तो ओल्ड इंजरीज, करंट इंजरीज हमारी फ्यूचर में बहुत बड़ी इंजरी की तरह सामने आती है. ओके, सो इफ एन एग्जांपल, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई छोटा सा माइक्रो मसल टेयर है ओल्ड इंजरीज में, ओके, आपको उस टाइम पे ज्यादा दर्द भी नहीं हुआ ना, उसने आपने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है. सो देन इट कम्स इनटू द करंट इंजरीज थोड़ा सा बड़ा होके. Okay, now here if we try to treat the injury, it takes a little bit longer time. Okay, and what happens if here also you did not inform us properly, in future it may happen that वो operative zone में चला जाए, या फिर आपके करियर के 2-3 साल खराब हो जाए. Okay, so whenever you feel little bit, also if you feel that there is something which is wrong going on in my body, I clearly suggest all the coaches to give this information to all the players, that they should either inform the coach, and after that they should inform the physiotherapist, so that we can carry out all these things properly, and maybe we can avoid all those injuries, and future में हमें अच्छे players का अच्छे प्लेयर्स हमको फिल्टर होके मिल जाए. ओके, सो अगर आप फ्यूचर की बात करते हो, तो प्रिपरेशन हमेशा एक एक दिन से होता है, एक एक दिन की इंजुरीज काउंट होती है, छोटी से छोटी इंजुरी को इन्फॉर्म करना है, ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द अदर इंजुरीज इन सेपेक टाकरो. फर्स्ट इज ओवरयूज इंजुरी. Overuse injury is a common type of injury which comes into picture in any player, okay, in any game, in any player. So for example, अगर एक टेकॉन है और अगर वो एक मूवमेंट को repetitively करता है, okay, if one player repeats a movement again and again, so at that time, if the muscle capacity of the player is not that much to repeat it for so many number of times, then it gets converted into injury. So overuse injury में 3 types है. एक है hypertrophy, एक है muscle tear and एक है muscle pull. Okay, so अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें, आपके सामने जो पिक्चर है उसे अगर हम इसे ध्यान से देखें, आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है नॉर्मल मसल, ठीक है, और आपके राइट हैंड साइड पे लिखा है हाइपरट्रोफीड मसल. ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया है, दैट इज अ शोल्डर. यहाँ पे शोल्डर है, यहाँ पे हमारी एल्बो है और यहाँ पे हमारी रिस्ट है, ठीक है. सो ये हमारे हैंड का मैंने पिक्चर का एग्जाम्पल दिया हुआ है. सो व्हाट इज हाइपरट्रोफी? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर नॉर्मल मसल, अगर नॉर्मल इंसान एट रेस्ट है, ठीक है, इफ अ नॉर्मल पर्सन इज एट रेस्ट, द मसल विल लुक इन दिस वे. Okay, now if the player goes to the field, he plays for a long period of time, he exercises, he do all the exercises and everything, there is an immense gush of oxygen, blood flow, and all the nutrients into the muscle, and the muscle is the size of the muscle increases. So in this way उसकी size बढ़ जाती है muscle की, इसको हम बोलते हैं हाइपरट्रोफी ऑफ द मसल. ओके, सो दिस इज अ नॉर्मल फेनोमेनन. अगर कोई भी बच्चा एक्सरसाइज करता है तो ये चीज नॉर्मल होती है, इसमें ये तो होना ही है, irrespective of anything. This is called as exercise induced hypertrophy. Okay, but if अगर इसमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो क्या होगा? जब यहाँ से यहाँ जाएगा, अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो साइज तो इंक्रीज होना ही है एक्सरसाइज करने के टाइम पे. तो क्या होगा? छोटे छोटे जो माइक्रो फाइबर्स होते हैं मसल्स के, मसल्स बहुत सारे फाइबर्स से जुड़ा होता है, बहुत सारे स्ट्रैंड से जुड़ा होता है. तो अगर अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो जब आप एक्सरसाइज करोगे, इसकी साइज जब इंक्रीज होगी, that time the muscle fiber will break and it will give you micro injuries.
which is called as muscle tear. ओके, सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हाइपरट्रोफी होता है, उसमें माइक्रो जो हमारे स्ट्रैंड्स होते हैं मसल्स, वो टेयर हो जाते हैं छोटे छोटे, ये भी नॉर्मल है। अगर माइक्रो लेवल पे हमने इसको ठीक कर दिया तो मेजॉरिटी में फिर बड़ा मसल टेयर हमको नहीं होगा। और हम इसको ठीक कैसे करेंगे? आइसिंग से, वो मैं आपको आगे इंट्रोड्यूस करूंगी। सो नॉर्मली व्हेन अ मसल tear happens, you have to first of all apply ice and cool it down. Okay, next is muscle pull. What is muscle pull? अगर इसी टाइम पे एक्सरसाइज हम कर रहे हैं and the size of the muscle has increased in this way, so what will happen? If the strength and flexibility is not adequate, the muscle will pull from here. ओके, वो अपने जॉइंट, जिधर भी जॉइंट है, ये एरिया है और ये एरिया है, ये मसल और बोन को जॉइंट करता है, दैट इज नोन एज टेंडन। ओके, टेंडन विच जॉइंट्स अ मसल फ्रॉम अ बोन। तो नॉर्मली हमको मसल पुल यहाँ पे होता है टेंडन्स में, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, और उस दौरान हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो प्लेयर्स कंप्लेन करते हैं, मैम मसल पुल हो गया। ठीक है, मसल पुल क्या होता है? यह जब हाइपरट्रोफी में जाता है मसल, उस दौरान आपकी जो मसल है वो खिंचती है, ठीक है, इन एरियाज से खिंचती है। सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ ओवरयूज इंजरी। जब आप नॉर्मली एक ही मूवमेंट को रेपिटेटिव करते हो, तब आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, एक नॉर्मल प्लेयर को आती है। Next is adhesions. What is adhesions now? Adhesions is a knot of a muscle. Okay, muscle knot. So what happens is, if you see this picture, the light pink area, the first layer which you can see is the skin. Below the skin, the dark pink area which you can see, this one is the fascia. Skin के नीचे एक layer होती है जिसको हम fascia बोलते हैं। नेक्स्ट येलो कलर के जो बबल्स दिख रहे, दैट इज फैट, एंड द ब्राउन कलर वंस इज द मसल। सो जब ओवर यूज इंजरी होती है, तब उसके साथ साथ हमें मसल नॉट्स भी हो जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होती, उस टाइम पे मसल नॉट्स हो जाते हैं। हमारा सेपेक टाक्रो एक ऐसा गेम है जहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। तो आप देख रहे हो कि अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारे को कितने सारे इश्यूज आ सकते हैं। सो दिस इज अ मसल नॉट विच यू कैन सी, द वन विच इज कमिंग अप, yes, the one which is coming up over here. Okay, so what we can do for this? Normally when such a player comes to a physiotherapist, so that time we have different techniques how we reduce this muscle knot. ठीक है, हमारे पास अलग टेक्निक्स होती है जिसको हम मायोफेशियल रिलीज बोलते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट ऊपर चलता हुआ आप देख रहे हो, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच अ फिजियोथेरेपिस्ट यूज। ओके, but if the physiotherapist is unavailable, or if you want to treat that minor thing on your own level, I would suggest that each and every participant, each and every player should use foam roller after the practice sessions. Why? Because after the practice sessions, when you perform the cool down exercises, आपकी body पूरी नॉर्मल हो जाती है, पूरी रिलैक्स हो जाती है। आपकी जो हाइपरट्रोफीड मसल है वो धीरे धीरे करके फिर से नॉर्मल में जाना शुरू कर देती है, एंड वही टाइम होता है जब आपको मसल नॉट्स डेवलप होती है। सो व्हेन यू यूज अ फोम रोलर, तो आप जैसे ये इंस्ट्रूमेंट को देख रहे हो, फोम रोलर इज जस्ट, अगर आप सपोज आप हिप मसल को ट्रेन कर रहे हो या हिप मसल पे अगर आप नॉट्स रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो, सो इस तरीके से वो मसाजिंग इफेक्ट देता है, और इस तरीके से हमारी जो नॉट है वो धीरे धीरे करके डिसॉल्व हो जाती है। तो नॉर्मली मैं नेशनल कैंप्स में हमेशा मेरे प्लेयर्स को ये चीज तो बोलती ही हूँ कि आपका सेशन जैसे ही हो जाता है, आई ऑलवेज हैव माई फोम रोलर विथ मी. I make it compulsory that everyone should use foam roller and then only move out of the
field. Why this is? Because this is a type of injury prevention only. I do not want कि मेरा player बहुत ज़्यादा hyper condition में बाद में मेरे पास आए. अगर मैं उसको रेगुलर बेसिस पे ही एक नॉलेज प्रोवाइड करूंगी तो फिर उसकी इंजरी का बढ़ने के चांसेस नहीं होंगे. I hope this is clear. This is called as adhesions, which is basically a muscle knot. Now in overuse injury, let's talk about a specific player. This position is a Tekon position. Okay, so I would like to discuss कि एक position को बार बार repeat करने से हमारी body में, player की body में क्या क्या muscles involve होते हैं, कौन से muscles में injury होने के chances होते हैं. Okay, so first is quadriceps muscle. तो जब आप पैर उठाते हो, अब हमारी सेपेक टाक्रो गेम ही ऐसी है जहाँ पे यू नीड टू हैव योर मूवमेंट अबाउ द स्टमक एरिया. 90 डिग्री से ऊपर 180 डिग्री में हमेशा प्लेयर्स पैर उठाते हैं. तो इस मूवमेंट में हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल विच इज अ फ्रंट थाई मसल, दिस इज अ क्वाड्रिसेप्स मसल. यहाँ पे हमको जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है, ओवरयूज इंजरी, हाइपरट्रोफी, adhesions, all that stuff can happen over here in quadriceps muscle. So we need to keep it most flexible because आगे जो हम पैर उठाते हैं जब भी उस टाइम पे पैर उठाने के लिए जो सबसे important muscle है that is quadriceps muscle, front thigh muscle. Okay, next is hamstring muscle which is a back thigh muscle, this one. Okay, ऐसा नहीं है कि जब आप एक मूवमेंट करते हो तो एक ही मसल यूज होती, मल्टीपल मसल्स कम इनटू द पिक्चर. एक फ्रंट मसल और एक बैक की मसल कम्स इनटू द पिक्चर फॉर लिफ्टिंग योर लेग अप एंड ब्रिंगिंग अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर जॉइंट्स. तो जैसे ये मसल काम कर रही है वैसे ही हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच हो रही है. ठीक है, तो ओवर यूज इंजरी के सारे इफेक्ट्स हमको हैमस्ट्रिंग मसल्स में भी दिखेंगे, बैक ऑफ द थाई में भी दिखेंगे. नेक्स्ट इज ग्लूटियस. ग्लूटियस इज व्हाट? हिप मसल. ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. लोअर बैक, हमारी ग्लूटियस मसल, हमारी हैमस्ट्रिंग्स, calf and our foot all is connected in one unit. Okay, everything is one unit. So why am I saying this? Many a times we as a physiotherapist have seen that pain होता है बैक में या फिर पेन होता है ग्लूटियस में. एक्चुअल उसका जो ओरिजिन ऑफ द पेन है या फिर अडीजन है वो बैक में या फिर हिप में हमको मिलता है. बट व्हेन द प्लेयर कम्स विद अ कंप्लेन, तो वो क्या कंप्लेन करता है? मैम मेरा ना यहाँ पे काफ में पेन है, मैम मुझे फुट में पेन है, मैम मुझे हैमस्ट्रिंग्स में पेन है. कई बार ये जो पेन है दिक्कत होती है लोअर बैक में, दिक्कत होती है हिप में, लेकिन उसका जो पेन है वो पूरे लेग में ट्रैवल करता है. So when a player comes to us, we not only check the area which is affected, जो एरिया में कंप्लेन कर रहा है वो एरिया तो होता ही है, लेकिन उसके ऊपर के एरियाज भी हमको चेक करने पड़ते हैं बिकॉज मेनी टाइम्स ऊपर से ही पेन नीचे ट्रैवल करके आता है. दैट इज व्हाई इन सेपेक टाक्रो गेम लोअर बैक, ग्लूट्स, हैम्स, काफ मसल, फुट मसल, क्वाड्रिसेप्स, ये सारे मसल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का बैलेंस बनना बहुत ज्यादा जरूरी है. फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का बैलेंस बनना. नेक्स्ट इज अब्डोमिनल ओब्लिक्स. अब्डोमिनल ओब्लिक्स इज हमारी अब्डोमिन की मसल्स है. ओब्लिक्स जैसे रेक्टस मसल होती है जो फ्रंट में होती है, which we normally call 6 abs, 8 abs. Okay, that is the front muscle and these are the obliques. ठीक है, सेपेक टाक्रो गेम में so many jumps, so many twist, back twist. Okay, and also when the leg is up, obliques are definitely used. तो many a times ऐसा होता है कि abdominal obliques में जब हमको overuse injury होती है या adhesions होते हैं उस टाइम पे ब्रीदिंग में भी किसी किसी को अफेक्ट होता है. ब्रीदिंग में भी कंप्लेन, मैम मैं पूरी तरीके से जब ब्रीथ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पेन होता है, पेट में पेन होता है, ओब्लिक्स में पेन होता है. तो उस टाइम पे हमको पता चलता है कि इनके ओब्लिक्स में कहीं ना कहीं
इंजरी है. Next is lower abdomen. As I already told you that our lower abdomen, glutes, and all this is one unit. Sepak takraw is a game where we have lot many twists or lot many jerks. Okay, बहुत सारे jerks होते हैं, twist होते हैं. So यहाँ पे injury होना बहुत ही common है. Next is iliopsoas muscle. Okay, iliopsoas is a muscle which comes right from your lower back and it comes ahead up to your thigh muscle. Okay, आपकी जो front thigh है यहाँ पे आती है, start होती है back से और आती क्रॉस, बॉडी को क्रॉस करके कहाँ पे पहुंचती है, हमारी फ्रंट मसल में, फ्रंट थाई में पहुंचती है. अब इस वजह से क्या होता है कि मसल जो है, जब ये एक ऐसी मसल है जिसको हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं स्ट्रेचिंग में. जब हम स्ट्रेचिंग प्रोटोकॉल करते हैं, इलियोसोवास मसल टाइटनेस की अलग से स्ट्रेचिंग है. इस मसल को नॉर्मली इग्नोर किया जाता है. इट्स अ वेरी डीप मसल एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब वो काम करती है, जब आप पैर उठाते हो, जब आप ट्विस्ट लेते हो, उस टाइम पे व्हाट हैपेंस, दिस मसल गेट्स इंजर्ड. ये मसल का पेन कहाँ कहाँ आता है, बैक में और उसके साथ साथ ग्रॉइन में. कई बार हम लोग को ऐसे देखने मिलता है कि प्लेयर्स ग्रॉइन में पेन और बैक में पेन साथ में लेके आते हैं. जिसको बैक में पेन होती है उसको ग्रॉइन में होती है और वाइस वर्सा. तो नॉर्मली ग्रॉइन और बैक से अगर जुड़ा हुआ कोई भी इश्यू है तो उसमें इलियोसोवास बहुत ज्यादा टाइट है, उसमें इंजरी हो रखी है, उसमें अधीशन हो रखा है. इस वजह से इलियोसोवास मसल, इस वजह से पेन आया है. ओके, सो इलियोसोवास की स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है. ग्रोइन मसल्स की स्ट्रेचिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट इज टेंडोएचिलिस, दैट इज काफ मसल. एज आई टोल्ड यू, जब आप टैपिंग करते हो तो टैपिंग के टाइम पे एक मूवमेंट होती है ऊपर लेना और फोर्सफुली नीचे पुश करना. ठीक है, नीचे पुश करना. जब आप ऊपर लेते हो तब काफ मसल स्ट्रेच होती है. जब आप पावर से उसको किक मारते हो उस टाइम पे काफ मसल इमीडिएटली पावर के साथ जर्क मारती है. उस टाइम पे हमको काफ मसल्स की इंजरी होने के चांसेस है, बिकॉज यही हम रेपिटेटिव करते हैं ना. ओवर यूज इंजरी का डेफिनेशन ही ये है कि जब आप एक मूवमेंट को बार बार करते हो सो इट बिकम्स प्रोन फॉर इंजरी. उसमें इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो फॉर दैट वी नीड टू कीप अवर flexibility and our strength, endurance, everything very nice so that we should not go into this phase. And most important muscle which is again ignored in our game, in our sepak takraw game, is tibialis anterior muscle. That is, if you see यहाँ पे foot पे anteriorly एक muscle होती है जिसको हम tibialis anterior बोलते हैं. जब आप टैपिंग करते हो तो पहले आप ऐसे बेंड करते हो पैर को और बाद में टैप करते हो. ठीक है, तो जब आप काफ मसल को, जब आप यहाँ की काफ मसल को ट्रेन करते हो, उसके साथ साथ एंकल जॉइंट पे स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बनाने के लिए आपको इस मसल को भी अच्छे से ट्रेन करना है. नॉर्मली हम इस मसल को ट्रेन करना भूल जाते हैं. So tibialis anterior muscle is a very important muscle to be trained and it brings balance between your calf muscle and your ankle muscle. इससे जुड़ी हुई और एक बहुत बड़ी वाली इंजरी है, that is our shin pain. Yes, sorry. Shin pain is normal in sepak takraw player. So because of that what happens, tibialis anterior में adhesions हो जाते हैं, वो टाइट हो जाती है. अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो ज्यादा टाइट हो जाती है और वो पूरा लोड कौन उठाता है, हमारी शिन उठाती है. यहाँ पे हमारी शिन उठाती है. सो एक्चुअली द मसल इज प्लेस्ड ओवर हियर. अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हो जाता है, अगर यहाँ पे अडीशंस हो जाते हैं, वो डायरेक्ट इफेक्ट आपकी शिन पे देती है. तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना है, डेली बेसिस पे फोम रोलर यूज करना है. कहाँ यूज करना है, काफ में यूज करना है. बिकॉज tibialis anterior इज अ वेरी स्मॉल मसल. ओके, वो इतनी छोटी मसल है कि उस पे हम रोलर घुमाएंगे तो इतना ज्यादा हमको शायद इफेक्ट नहीं मिलेगा. So that is why उसके पीछे की जो मसल है, that is calf muscle,
इफ वी रिलैक्स दैट मसल प्रॉपरली तो वो अपना लोड जो है tibialis anterior के ऊपर जितना भी लोड आ रहा है that would be saved. So I hope you are all clear with the muscles which are normally involved in a sepak takraw game. This is another picture of our Indian player where you can see the amount of twist which has been carried out over here. कितना ज्यादा ट्विस्टिंग ऑफ द बॉडी है. सो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि हमारी बैक में कितनी ज्यादा इंजरीज हो सकती है हिप मसल में, क्योंकि ये पूरा जो लोड है इन्होंने जैसे एक ट्विस्ट मारा है ये पूरा लोड एक्चुअली उनकी बैक पे गया है. एंड अगर आप ओपोनेंट को देखें यहाँ पे उसका भी एक पोज बना हुआ है. ठीक है, अगर आप ओपोनेंट को देखिए उनकी ग्रॉइन कितनी ज्यादा, उनका लेग कितना ज्यादा अबडक्टेड है. ठीक है, इस एंगल की वजह से हो सकता है कि उनकी ग्रॉइन में इंजरी होने के चांसेस हो. So that is why our flexibility has to be very, very good enough to carry out such difficult movements. Okay. What are other injuries now? Apart from the muscle injuries, now we come towards the ligaments, that is ankle sprains. ठीक है, कई बार मुझे बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं और मुझे बोलते हैं मैम पैर ट्विस्ट हो गया. ठीक है, जब मैं उनकी हिस्ट्री लेती हूँ, हिस्ट्री मतलब ओल्ड इंजुरीज, जब मैं उनको पूछती हूँ ओके आपका पैर अब कितनी बार ये पैर आपका कितनी बार ट्विस्ट हो चुका है. एक ही पैर में मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स आए हैं जिसमें 25-30 टाइम्स एंकल स्प्रेन हो चुका है. सो what is ankle sprain? If you see this white color ka thing, that is our ligaments. Okay, our ligaments are keep our joints stable. Okay, it makes it so much stable that even if the twist comes into the picture, it does not go into an injury phase. ठीक है, सो हमारी लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग हमारी जॉइंट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अगर किसी का इंजरी हुआ है, एंकल ट्विस्ट हुआ है, प्लीज काइंडली डू नॉट इग्नोर एंकल स्प्रेन्स बिकॉज इन फ्यूचर व्हाट हैपेंस इज कि लिगामेंट में इंजरी बढ़ बढ़ के इट गोज इनटू एन ऑपरेटिव फेज. यू अंडरस्टैंड, ऑपरेटिव फेज मतलब प्रॉपर 2 years ऑफ बेड रेस्ट, फिर आप उसमें दिक्कत हो जाती है. इसमें भी इसमें और एक पिक्चर में ये एक दिया हुआ है दैट इज फ्रैक्चर ऑफ लिटिल फिंगर, बट नॉर्मली आई हैवंट सीन फ्रैक्चर्स सो कॉमन इन सेपेक टाक्रो. तो लिगामेंट्स में अनदर लिगामेंट इज नी लिगामेंट. So if you see this picture, this is the thigh bone. Okay, this full is the thigh bone. नीचे जो है वो हमारी लेग का बोन है. ओके, एंड सेंटर में जो राउंड है दैट इज पटेला, दैट इज अ बोन कॉल्ड एज पटेला व्हिच इज अ नी जॉइंट. ओके, नाउ ऑन दिस इफ यू कैन सी व्हाइट कलर के बैंड्स, दिस 1 2 हियर, दिस साइड 3 एंड इधर और एक होता है 4. तो ये लिगामेंट्स जो है ये नी की लिगामेंट्स है. नॉर्मली नी की लिगामेंट्स कब पिक्चर में आती है, जब उसमें रोटेशनल फोर्स आता है. अब आप देखिए एक पैर आपका नीचे है, ठीक है, दूसरे पैर से आप किक कर रहे हो, सो देयर इज डेफिनेटली अ माइक्रो लेवल रोटेशनल फोर्स गोइंग ऑन टुवर्ड्स योर नी जॉइंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी नी में भी इंजरी होने के चांसेस है, लिगामेंट टेयर होने के चांसेस है. लिगामेंट्स का दिखाने का मेरा मोटिव सबसे ज्यादा ये है कि लिगामेंट्स में भी 4 टाइप्स होते हैं, लाइक 25% of the injury, 50% of injury, 75% of injury and 100% of injury. अगर शुरुआत में एक बार हो गया, ठीक है, हो सकता है 25% ना हो. ठीक है, दूसरे बार हुआ, तीसरे बार हुआ, चौथे बार हुआ, आपने उसको इग्नोर किया, अब आपका फेज 1 आ चुका है, 25% ऑफ इंजुरी आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, 25 में पेन शुरू हो जाता है आपको आना. ठीक है, देन if you ignore it 25 to 50% में अगर आपने इग्नोर किया, अगर वो इंजुरी ज्यादा बढ़ गई, अगर आपने राइट टाइम पे दिखाया नहीं और आप यू कंटिन्यू टू प्ले विदाउट रिहेबिलिटेशन, so what will happen, that ligament injury will go towards 75% and 100%.
75% के बाद it is not in our hands, it is directly into the hands of an orthopedic surgeon. वो अपनी लिगामेंट टेयर को फिर ठीक करता है सर्जिकली. सो जब हमको ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी पता है, व्हेन वी एज प्लेयर्स वी नो ऑल दीज प्रॉब्लम्स, व्हाई डोंट वी टेक प्रिकॉशन टुवर्ड्स इट, व्हाई डोंट वी गो फॉर some particular exercises which will help us to keep all these problems away. Okay, I'll introduce those exercises also. So this is the matter of ligaments which I wanted to clear. One is ankle injury, which is very common, and one is knee injury, which is very common. So now we go towards how to prevent our injury. आपको अब इंजरीज के बारे में पता चल चुका है, ठीक है. इंजरी प्रिवेंशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है. आई वांट कि हर एक कोच, हमारे हर एक प्लेयर्स जो होते हैं, उनको इस चीज के बारे में नॉलेज दे, ठीक है. अभी हमारे जो एलीट प्लेयर्स है, ऑलरेडी जो अच्छे प्लेयर्स है, उनको नॉर्मली पता होता है कि प्रिवेंशन हम कैसे किस तरीके से करा जाए. लेकिन जो डेवलपिंग प्लेयर्स है, जो छोटे प्लेयर्स है, अगर इस पॉइंट पे हम उनको प्रिवेंशन ऑफ इंजरी के बारे में इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस अभी से करें, आई एम सो श्योर कि हमारी इंडिया के लिए जो मेडल्स आ रहे हैं उसका रेट हमारा डबल हो जाएगा. बिकॉज जब प्लेयर को अपनी खुद की बॉडी के बारे में पता चलता है, तब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है. जब बारिश आती है तभी हमको पता है कि हमको छाते से उसको प्रिवेंट करना है. सो सिमिलरली अगर ये नॉलेज उनको बेसिक लेवल पे दी जाए, तो प्लेयर बहुत मेच्योरिटी से आगे बढ़ता है और अपनी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लगता है. So how to prevent injury? First is adequate warm up. Okay, so normally ideally I have seen all the players do warm up very nicely. Okay, but 100% में से 4-5% ऐसे भी मैंने देखे हैं, 5% ऐसे भी मैंने देखे हैं जो थोड़ा सा लेजीनेस करते हैं वार्म अप के टाइम पे, बिकॉज दे डू नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वार्म अप. ओके, व्हाई वार्म अप इज इम्पोर्टेंट? अगर आप रेस्ट में हो और आपको इस इंटेंसिटी से एकदम हाई इंटेंसिटी पे जाना है, तो उसके लिए आपकी ब्रीदिंग, आपकी ब्लड वेसल्स, आपका हार्ट, आपकी पूरी बॉडी का फंक्शनिंग उस लेवल पे होना चाहिए. इट शुड गो टू दैट लेवल. तो एडिक्वेट वार्म अप इज अ स्टेप between your rest phase and between your higher level phase, your exercise phase. If you directly jump towards your exercise without adequate, I have especially written this word adequate. Warm up is not just warm up, it should be adequate to each and all parts of your body, each and all section of your body which is responsible in your game. Okay, so adequate warm up is very important. ब्लड फ्लो आपका धीरे धीरे करके जिस मसल को आपको यूज करना है सेपेक टाकरो में, उस मसल के तरफ आपका ब्लड फ्लो जाता है, उस मसल के तरफ आपका ऑक्सीजन फ्लो बढ़ जाता है. तो इट्स अ स्टेप, it is included into adequate warm up is included into prevention of injury. So if you see these muscles, which all muscles are normally a sepak takraw player should do an adequate warm up, that is quadriceps. I already told you, the one which is in front of thigh, hamstrings which is back of thigh, calves again नीचे वाला जो already people know, hip flexor is quadriceps plus groin area भी आ जाता है, उसको adductors बोलते हैं. ठीक है, groin area इन्होंने दिखाया है. And apart from all this, I would also tell you to go for warm up for core muscles and your back muscles. Okay, core muscles भी बहुत ज्यादा important है हमारे गेम में. Next is adequate cool down. The way you are training yourself for warm up, ठीक है, उसी तरीके से adequate cool down भी important है. जैसे हम स्टेप वाइज हमारी बॉडी को रेस्टिंग स्टेज से हायर स्टेज पे लेकर जाते हैं slowly. Okay, in the same way, when you are at a very higher stage and now you want to move towards the resting phase, so you
do cool down exercises, so your central system, that is your central nervous system, and your physical, your cardiac, all the levels will go properly stepwise down. Okay, so adequate cool down is also important. Do not, make sure, अगर ये दो चीज कोचेस ने अगर ये दो चीज पे ध्यान दे दिया कि अगर कोई भी बच्चा वार्म अप में कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, मतलब आनाकानी नहीं कर रहा है या फिर कूल डाउन में नहीं कर रहा है, सो दैट वुड definitely prevent, help in prevention of injury. Cool down is very important. Now in recovery, normally people say that recovery मतलब normally rest है और sleep है, ठीक है, but it's not that. Apart from rest and sleep, recovery में और बहुत सारे points हम cover करने वाले हैं. First of course is rest and sleep. तो नेशनल कैंप्स में मैंने देखा हुआ है कि जो कोचेस होते हैं वो हमारे प्लेयर्स के मोबाइल फोन्स ले लेते हैं एक टाइम के बाद, ठीक है. व्हाई? बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर दैट द प्लेयर टेक्स रेस्ट एंड द प्लेयर टेक्स स्लीप एडिक्वेटली. ओके, बिकॉज अगर प्लेयर पूरा टाइम रात में अगर फोन पे है या किसी और गैजेट पे है, स्लीप अच्छे से नहीं हुई है, उसकी तुरंत हमको परफॉर्मेंस नेक्स्ट डे दिख जाएगी, उसकी लेवल ऑफ एक्टिविटी में दिखेगी. ओके, उसकी अलर्टनेस में दिखेगी, उसकी पावर में दिखेगी, उसकी स्ट्रेंथ में दिखेगी, उसका रिएक्शन टाइम इतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है. सो दैट इज व्हाई रेस्ट एंड स्लीप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर रिकवरी. Whenever players get time to rest, kindly keep your phones aside, keep your gadgets aside, and completely rest. The way your mind and your brain needs rest, in the similar way, when you are sleeping, that time your muscles also go into rest. Your muscles also rest. ठीक है, जैसे ब्रेन रेस्ट करता है उसी तरीके से आपकी मसल्स को भी उतना रेस्ट पीरियड चाहिए होता है. आप जाग रहे हो उससे रेस्ट नहीं मिलता, आप लेटे हो बेड पे उससे रेस्ट नहीं मिलता. You actually need to sleep, you actually need to take so much period of time. So in this graph, if you see, if you take rest and sleep recovery properly, then your graph goes up. Here also, if you take a rest and recovery properly, your graph goes up and you reach the result which you want. Okay, but अगर इस स्टेज में, अगर सपोज इस यहाँ पे हमारी गेम है सपोज, ठीक है, इस स्टेज में अगर हमने कहीं पर भी सही से रेस्ट नहीं लिया तो यहाँ पे हमको फेलियर आ जाएगी और उसका पूरा रिजल्ट आ जाएगा हमारी गेम पे. अच्छा, सेपेक टैक्रो इज अ टीम गेम, ठीक है, हर एक प्लेयर उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है. सो अगर ऐसा हो कि भाई मैंने अपना रेस्ट और मैंने अपनी स्लीप अच्छे से नहीं ली, ठीक है, it is not going to affect your alone performance, it is going to affect your team performance, it is going to affect the future of India, the future of Sepak Takraw. So if you take all these things not on the personal level, अपना पर्सनल लेवल छोड़ दो, अपनी गेम को पहले आगे रखो, अपने कंट्री को आगे रखो. हमारा सेपेक टाक्रो अभी और बहुत आगे जाना चाहिए. सो इस वे में अगर आप सोचो, देन यू विल बी मैच्योर्ड इनफ एंड सीरियस इनफ टू टेक ओवर ऑल दीज थिंग्स वेरी सीरियसली. सो नेक्स्ट इज डाइट. नॉर्मली डाइट के बारे में प्लेयर्स डू नो दैट हाई इंटेंसिटी गेम है हमारा, हमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है. कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प अस फॉर कार्डियक एंड्योरेंस, जहाँ पे भी कार्डियक की हमको इश्यूज आती है, जहाँ पे भी, वहाँ पे हमको कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट होता है. नॉर्मली गेम के बाद वी शुड टेक लिक्विड कार्बोहाइड्रेट्स का ड्रिंक एंड ऑल, so that immediately हमको एक एनर्जी आ जाए, ठीक है. एंड प्रोटीन्स, आई हैव सीन नॉर्मली ऑल द players are non-vegetarians, but some of them who are vegetarians can have multigrain atta and multigrain sprouts and all that stuff, so that they can add up to their protein level also. Next is hydration. Some people do not consider this point.
under recovery. But as a doctor, as a physiotherapist, so sports physiotherapist, I would definitely recommend hydration under recovery, because our body is made up of water maximum percent. Okay, 70-75% जो है हमारी बॉडी वाटर से बनी हुई है. अगर हमारे अंदर वाटर ही नहीं होगा तो हाउ विल वी एबल टू. डिहाइड्रेशन की वजह से कंफ्यूजन होती है, डिजीनेस होती है, ठीक है, मसल इंजुरीज ज्यादा होती है. आप एक एग्जांपल ले लो, अगर एक सेल में ज्यादा से ज्यादा वाटर है, ठीक है, if you are not hydrating yourself in an adequate period of time, then what will happen? The cell will go into dryness, and a dry cell is more prone for maximum injuries. ड्राई सेल अगर होगी उसमें इंजुरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अगर सेल में अच्छा खासा पानी होगा तो इट विल नॉट हैपन. So many players come up with a picture of cramp. मसल क्रैम्प बहुत ज्यादा कॉमन है प्लेयर्स के अंदर. सो मसल क्रैम्प का एक रीजन है, देयर इज नॉट इनफ वाटर विच यू नीड टू हैव फॉर योर बॉडी. ओके, अगर आपकी बॉडी को सपोज दिन में 5 लीटर पानी चाहिए, अगर आपने 4 लीटर 3 लीटर रखा, इट इज ऑब्वियस दैट आपको गेम खेलने के टाइम पे या तो रात को सोने के टाइम पे आपको क्रैम्प्स आए. ठीक है, cramp has a direct relationship with the hydration in your body. So that's the time when we normally tell the players कि अब आप go for the electrolyte, because सोडियम और क्लोरीन, सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस है वो आपके नहीं रहता. बहुत सारा पानी पिलाए उससे अच्छा है कि इमीडिएट लेवल पे व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक इलेक्ट्रोलाइट पाउडर और ORS पाउडर to balance your cramps, to balance the electrolyte balance and save your cramps. But if you are regular in drinking water properly, it will definitely help you in injury prevention. So normally एक normal इंसान को it takes 3 liters of water per day, but for a player it goes up to 5 to 6 liters per day. Okay, so water and hydration has to be important. I remember when I was in the World Cup camp, I used to specially go in the women's room and check out for the bottles that how much hydration they used to take. So if you take care of these things on a personal level, then we as a physiotherapist do not have more headache. Okay, and next is hydration. This is an hydration chart. This is a urine color chart. So here आप अपनी हाइड्रेशन को चेक कैसे करोगे. ठीक है, आपका यूरिन आउटपुट जब होता है उसके कलर के हिसाब से you will check your hydration level. Okay, so these are the 7 colors or 7 to 8 colors where we can see that hydration कैसे चेक होता है. इस रेड लाइन के ऊपर अगर आपका कलर लाई करता है, यूरिन का कलर लाई करता है, प्योर व्हाइट है एंड दिस लाइट एकदम लाइट येलो ऑफ व्हाइट क्रीम टाइप, सो इसमें दिस मीन्स दैट योर हाइड्रेशन लेवल इज गुड इनफ. आपका हाइड्रेशन बहुत अच्छा है बॉडी में एंड यू कैन मेंटेन इट. ओके, मगर अगर ये रेड लाइन से नीचे गया, ओके, इफ यू कैन सी वो डार्कर शेड में चला जा रहा है, डार्क 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 होते जा रहा है. सो व्हेन यू गो फॉर द can you hear me? Hello? Hello? Yes, yes, we can hear you. Continue. Yes. Okay. So yes, so जब वो नीचे की तरफ जाता है, वो डार्कर जोन में चला जाता है, so उस टाइम पे हमारी दिक्कत बढ़ जाती है और डिहाइड्रेशन का जोन हमको पता चल जाता है. Guys, if you are falling in this range, please improve your hydration and try to fall in this range. First 3 ranges में try करना शुरू करो. जब गेम्स में होते हैं तब नॉर्मल रेगुलर चेकअप होता है. उस चेकअप में नॉर्मली हम प्लेयर्स को बोलते हैं कि आप एक बॉटल में अपना यूरिन लेकर आओ और टेस्ट करो.
तो ये सब आपकी फिजिकल असेसमेंट में एड अप होते जाता है। अगर इस चीज को आप बचपन से इनकलकेट करने की सलाह देंगे, कोचेस अगर अपने बच्चों को पहले से ही सलाह देंगे, सो इन फ्यूचर हमको दिक्कत नहीं आएगी। इन फ्यूचर players will take their own responsibility and go towards their own injury prevention. So this is the way how we go for the urine color testing for dehydration. Okay, this has got hang, I guess. My slide is hang, sir. Hello. Hello. Yeah. Sir, my slide is hanged. No, you can try again. Screen share already with you. My slide is not moving, sir, ahead. So you can close and reopen. Okay, okay, sir. Okay, so we are done with the hydration. Now we go towards icing. Okay, so icing is plays very important part in recovery. Normally, players think that icing is just a tool which we use after injury. अगर injury हो जाए तो ice करो, ठीक है? You are completely right. इसमें तो हम icing use करते ही हैं, but I would suggest अगर हम icing को everyday basis पे use करना शुरू करें, like after you had a good session, okay, बहुत अच्छा सेशन हुआ है, कूल डाउन आपका हो चुका है, आफ्टर कूल डाउन जो एरियाज मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस करे हैं, जैसे कि फ्रंट थाई आपको बोला है मैंने हैमस्ट्रिंग्स बोले हैं, ग्लूट मसल्स के लिए आप फोम रोलर यूज कर सकते हैं, एंड बैक मसल्स जैसे इन सारे मसल्स को अगर हम आइसिंग करेंगे तो जो मैंने आपको दिखाया था अधीजन्स, छोटे छोटे जो नॉट्स होते हैं, वो डेवलप होने से पहले ही रुक जाता है। वो आइसिंग एक ऐसी चीज है जो हमारी इंजरी को एक तो बंद कर देती है, जहाँ पे है वहां रोक देती है, और अगर हम उसका सही टाइम पे यूज करें तो वो हमारी इंजरी को आने ही नहीं देती। अगर हाइपरट्रोफी इन मसल हो रहा है, अगर मसल साइज बढ़ रही है, ठीक है, और कूल डाउन के टाइम पे भी वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई, अच्छे से वो नॉर्मल फेज में नहीं गई है, तो उस टाइम पे आफ्टर कूल डाउन पीरियड अगर हमने हमारे मेजर मसल्स, हमारे जो मसल्स एक्चुअल में काम कर रहे हैं, उन मसल्स को अगर हमने आइसिंग प्रोवाइड कर दी, तो उस टाइम पे दैट दोज मसल्स विल गो इनटू रिलैक्सेशन एंड इंजरी प्रिवेंशन हमारा अपने आप ही हो जाएगा। So I used to make sure that in every national camp, I make sure that all the players should sit together, have chat, and with that icing they should be using all the time. So this was a compulsion whenever I was a physiotherapist at any place. Another thing is foam roller. As I already told you that these two are the major things which will help you in recovery. जो आपकी इंजरी को होने से रोकेगा, अगर हो भी रही है वहीं पे रोक देगा। ये आप अपने लेवल पे कर सकते हो, ये आप कोचेस के लेवल पे, प्लेयर्स के लेवल पे कर सकते हो, इसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमने पहले ही उस इंजरी को दबा दिया तो फिर आपकी इंजरी बढ़ेगी नहीं और वो इंजरी आगे जाएगी नहीं। तो नॉर्मली हर एक सेशन के बाद अगर हो सके तो, इफ पॉसिबल, इफ materials are available to you, then I would suggest please go for icing first and then foam roller. Foam roller is for the relaxation of whole body, for preventing adhesions, and icing is for अगर कोई माइक्रो इंजरीज हुई है वही की वही रुक जाए, आगे डेवलप मत ना हो, एंड अगर अधीजन्स भी हुए हैं तो अधीजन्स भी इससे काफी हद तक रिजॉल्व हो सकते हैं। सो
प्लीज कोचेस जो है, मेक श्योर दैट यू इनकलकेट दिस न्यू हैबिट इनटू द प्लेयर्स right from the beginning. Also here I have seen, I want to make a point here, I have seen that when I was in the camp, players used to come to me. एक बार मैंने ये habit start करा दी थी players को, icing plus foam roller की. शुरुआत में 2-3 दिन उनको ऐसा लगा कि it was little forceful, but later on when they saw the effect no over their body, they felt more relaxed, and that is why बाद में I need not tell my players कि आ जाओ और करो. Later on, they used to fight for foam roller because we just had one foam roller, and they used to say that okay, first I'll do, then you do, then you do. तो line लगती थी foam roller और icing के लिए. तो आप अपने लेवल पे एक बार ये चीज ट्राई करके देखिए और इसको इनकलकेट करने की कोशिश करें. Now I would like to introduce strength, फ्लेक्सिबिलिटी, पावर, कोऑर्डिनेशन, स्पीड, ये सब चीजों के अपने अपने डेफिनेशंस है, ठीक है. एंड कोचेस अपने टेस्ट देते हैं ये सब चीज को अडेप्ट करने के लिए, ये सब चीज को हमारे पर्स में इनकलकेट करने के लिए. लेकिन फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ sports physiotherapist point of view, when I come to the picture, I want to introduce this terms again in my language. So what is strength exactly? Strength is how to train a strength. When a strength is in less weight, when a muscle is carrying out less weight and more number of repetitions. Okay, weight कम है और repetitions ज्यादा है, तब मसल की स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट आती है. और अभी भी है ना, स्ट्रेंथ बहुत फास्ट नहीं करना है कोई भी एक्सरसाइज. फॉर एग्जांपल मैं बाइसेप्स कर रही हूँ, ठीक है, एग्जांपल मेरे हाथ में डंबल है सपोज, ठीक है. अगर मैंने इस डंबल का वेट लिया 20 केजीज, तो 20 केजीज मेरे हिसाब से मेरे लिए 20 केजीज ज्यादा है, ठीक है. सो अगर मैं 20 केजीज ले रही हूँ, आई थिंक मैं 5 या फिर मैक्सिमम 7 to 8 रेपिटेशंस करूंगी 20 केजीज के साथ ये हाथ से. That won't improve my strength, that will improve my power. So for improving my strength, what I will do, 20 kgs मेरे से नहीं हो रहा है, मैं 3 किलो का वेट लूंगी, 3 kgs. Okay, I know 3 kgs से I am able to do a lot many repetitions. So with 3 kgs I will go for 20 repetitions. So that will come under the strength का portion. Also strength should not be carried out very fast. बहुत लोग फास्ट करते हैं, ठीक है. फास्ट करने से ना आपकी पूरी रेंज, मसल की पूरी रेंज ऑफ मोशन पिक्चर में नहीं आती, ठीक है. सिर्फ मसल बेली ट्रेन होती है, पूरी मसल ट्रेन नहीं होती. अगर आप फास्ट करोगे पूरी मसल ट्रेन नहीं होगी, सिर्फ मसल बेली ट्रेन होगी. तो अगर आप स्लो मूवमेंट करोगे उसमें आपकी पूरी मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होगी और अच्छे से उसकी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगी. नेक्स्ट इज पावर. एज आई सेड, मोर वेट लेस रिपीटेशंस. जब आपको पावर बढ़ानी है तो उस टाइम पे आपका वेट ज्यादा होना चाहिए और रिपीटेशंस लेस होने चाहिए. हमारी गेम में सबसे ज्यादा पावर कहाँ यूज होती है, कौन से मसल में यूज होती है? काफ मसल में, ठीक है. काफ मसल में हमारी पावर बहुत ज्यादा, क्योंकि द वे यू टैप इट, इसमें बहुत फोर्स लगता है, इसमें स्ट्रेंथ से ज्यादा पावर यूज होती है. बाकी सब मसल्स में स्ट्रेंथ और पावर यूज होती है, बट मेजॉरिटीली जो काफ मसल काम करती है जब आप टैप करते हो उस टाइम पे पावर का सबसे बड़ा रोल होता है. सो काफ मसल्स के लिए आप ज्यादा वेट ले सकते हो और रिपीटेशंस लेस कर सकते हो टू इम्प्रूव पावर. एंड इफ यू वांट टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, go for less weight and more repetitions. Next is flexibility. So normally हम flexibility कब करते हैं? वार्म अप के स्टार्टिंग में और कूल डाउन के एंडिंग में, ठीक है. तो वार्म अप के स्टार्टिंग में हम जस्ट एक रेंज तक लेके जाके छोड़ देते हैं, 2 सेकेंड्स, आई गेस 3 सेकेंड्स हम करते हैं और छोड़ देते हैं. कूल डाउन में हम अच्छा स्ट्रेच करते हैं. लेकिन रिसर्च ये कहती है कि कूल डाउन में normally हमारी जो मसल है that has gone under hypertrophy, which is already under hypertrophy. In hypertrophy muscle, if you stretch for a long period of time, then what happens? जो strands है, muscle strands है, वो break होने की
ब्रेक होना स्टार्ट कर देते हैं. सो इसीलिए कूल डाउन पीरियड में द मसल इज एक्चुअली गोइंग इनटू कूल डाउन. उसमें लॉन्ग स्ट्रेचेस हमको नहीं देने हैं. स्ट्रेचेस दो 5 सेकेंड्स 8 सेकेंड्स तक ठीक है, उससे ज्यादा आगे मत बढ़ाओ वरना फिर वो इंजरी पे चला जाएगा. कई बार स्ट्रेचिंग की वजह से भी इंजरीज हो जाती है. वाई? बिकॉज मसल ऑलरेडी पंप अप है. अब पंप अप मसल में आप फुल फोर्स दे दोगे, सामने नॉर्मली प्लेयर्स करते हैं वैसा, पार्टनर स्ट्रेचिंग करते हैं, तो जो ले रहा है स्ट्रेचिंग उसने गाइड करना है कि कितना स्ट्रेचिंग उसको सहन हो रहा है. ठीक है, जब नहीं हो रहा है तो प्लीज बताइए. तो एक्चुअली फिर फ्लेक्सिबिलिटी कब बढ़ती है? नॉट इन द वार्म अप, नॉट इन द कूल डाउन. फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए मेडिकली, ये जो टर्म मैंने आपको दी है मेडिकली, दिस इज प्रूवन टर्म. एक मसल को अगर आप 30 सेकेंड्स होल्ड करें, if you hold a muscle for 30 seconds stretch and 3 to 5 repetitions, then the muscle will go from plastic range to elastic range. So that is why the range of flexibility will be improved. And flexibility उस time पे आपकी improve होगी जब 30 seconds एक muscle को पकड़ के रखोगे. Not while warm up, not while cool down. This player has to do it on its own when it's in rest zone, या जब भी उसको time मिलता है. तो कोचेस आपको ये इंट्रोड्यूस करना है प्लेयर्स को कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी अलग से कैरी आउट करनी है अच्छे से. एक मसल को 3 to 5 रिपीटेशंस 30 सेकेंड्स होल्ड. Next is endurance. Normally endurance is divided into cardiac endurance and muscle endurance, but today I will introduce a new term, that is dynamic endurance and static endurance. Dynamic endurance is when your movement related endurance is called as dynamic endurance. Like for example running हो रही है, ठीक है, कोई एक्सरसाइज आप कर रहे हो जिसमें मूवमेंट है, so that is dynamic endurance. And one is static endurance, which is new to us. Static endurance means what? एक पोजीशन पे खड़े रहने का क्षमता. ठीक है, इधर मैंने एग्जांपल दिया है. अगर मैंने 5 kgs ऑफ वेट मेरे हाथ में रखा और मैंने अगर बोला 2 मिनट्स रुक जाओ, आई विल बी एबल टू, विदाउट मूविंग माई हैंड, ओके, आई विल बी एबल टू stand or sit, okay, with this hand like that, 5 kgs. 2 मिनट्स हो गए, 3 मिनट्स हो गए, 5 मिनट्स हो गए, अब वो हाथ शिवर करना शुरू कर देगा. अब 7-10 मिनट्स तो हो ही नहीं पाएगा. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक एंड्योरेंस. जब एक टेकोंग का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जब एक टेकोंग अपनी लेग को ऊपर लेके किक मारता है, तब उसका जो दूसरा पैर होता है, जो जमीन पे होता है, जो लैंडिंग फेज में होता है, ग्राउंड से अटैच्ड होता है, दैट इज वर्किंग एज अ स्टैटिक एंड्योरेंस. उस पैर में हमको स्टैटिक एंड्योरेंस को इम्प्रूव करना है और दूसरे पैर में हमको डायनेमिक एंड्योरेंस देखना है. सो ऐसा नहीं है कि एक ही पैर में करना है, एक पैर में नहीं. स्टैटिक एंड्योरेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज स्टैटिक एंड्योरेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारी जॉइंट स्टेबिलिटी के ऊपर जाता है. जितना जॉइंट स्टेबल होगा उतना ही अच्छा स्टैटिक एंड्योरेंस प्लेयर का डेवलप होगा. तो जॉइंट स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस, एज आई सेड, कि जब प्लेयर लैंड करता है उस समय जॉइंट को स्टेबल होने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी होती है, जिसके कारण स्ट्रेंथ हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता है, एंड्योरेंस आपको पता है, लेकिन जॉइंट स्टेबिलिटी एक ऐसा टर्म है जो मैं नया है और मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, बिकॉज जॉइंट स्टेबिलिटी के वजह से कई बार एंकल ट्विस्ट और हमारी नी ट्विस्ट देखी जाती है. इसलिए इसकी रिलेटेड एक्सरसाइज मैं आपको आगे दिखाऊंगी. ओके, कोर स्टेबिलिटी अब क्या है? कोर स्टेबिलिटी नॉर्मली लोगों को लगता है कि इट्स जस्ट एब वर्कआउट, 6 एब, 8 एब्स, but it's not like that. Core workout में there is abdominal muscles, there is diaphragm muscle which is a respiratory muscle. Respiratory muscle है बहुत बड़ा diaphragm जो यहाँ पे place होता है, वो मसल भी कोर में आता है. पेल्विक फ्लोर मसल्स आते हैं जो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जस्ट ऊपर होते हैं, उसको फ्लोर पे होते हैं. तो इसीलिए यहाँ के मसल्स जो है जो डीप होते हैं बहुत ज्यादा, इसकी एक्सरसाइजेस भी अलग होती है. So pelvic floor muscles will be there. Back of the muscles will be there. Back of the muscles is also considered into core. ठीक है,
जब आप कोर की बात करते हो, इट्स नॉट ओनली abdominals, it's the diaphragm muscle, it's the front abdominals, it's back of the lower back के muscles, hip muscles, pelvic floor muscles, ये सारे muscles आते हैं पिक्चर में। एक मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगी, जब हम हाथ रेस करते हैं ऐसे, ठीक है, उस टाइम पे भी हमारी कोर एक्टिवेट हो रही होती है। This is proven, this is into research. Okay, when we are moving our one hand, our core is already acting. When we are moving our leg, our lower core is activating. So core is there everywhere. So you just think about it, that core stability is directly proportional to the performance enhancement. इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के साथ। अगर आपका प्लेयर का कोर अच्छा होगा, नॉट ओनली एब मसल्स, योर बैक मसल्स, hip muscles, your pelvic floor and your diaphragm, all these muscles, if they are so strong enough, then आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी परफॉर्मेंस की लेवल ही कुछ अलग हो जाएगी। So that's why core stability is very important. Now I come to the exercise part. Which all exercise I have tried to show you some basic and some advanced exercises according to me. So this is an exercise for quadriceps. You can use a TheraBand. TheraBand में भी अलग अलग levels आते हैं, अलग अलग colors आते हैं। Yellow जो है वो सबसे easiest color है, वो normally हम operative cases में use करते हैं। तो उसके आगे जो colors जाते हैं, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ब्राउन है, ये सारे कलर्स जो है वो आपकी इसको चैलेंज करते हैं, स्ट्रेंथ को चैलेंज करते हैं। तो सबसे बेसिक येलो कलर होता है, यू कैन यूज एनी कलर। ये जो एक्सरसाइज है इसमें एंड रेंज ऑफ क्वाड्रिसेप्स एक्टिवेट होता है, ठीक है। हम नॉर्मली जो भी एक्सरसाइज करते हैं क्वाड्रिसेप्स की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, ये जोन को हम ज्यादा ट्रेन करते हैं। ये जो एक्सरसाइज मैंने दिखाया क्वाड्रिसेप्स का, ये पार्ट जो है वो ज्यादा एक्टिवेट होता है। हमको सिर्फ बेली को ट्रेन नहीं करना है, हमको पूरी मसल को ट्रेन करना है, ओरिजिन से लेके इंसर्शन तक हमको ट्रेन करना है। नेक्स्ट इज दिस एक्टिविटी, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। यहाँ पे इस लेडी ने लेग में वेट्स लगा रखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द वेट, अगेन इफ यू आर ट्रेनिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, लेस वेट लो, ज्यादा रिपीटेशंस करो। अगर आप पावर के लिए इस मसल को ट्रेन कर रहे हो, ज्यादा वेट लो, लेस रिपीटेशंस करो। ये मूवमेंट थोड़ी फास्ट है बिकॉज जिफ मैंने ऐड करी है, इसको स्लो करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वाड्रिसेप्स इन एडवांस। अब एडवांस में हम क्या क्या एक्सरसाइज देते हैं, जो हम सिटअप्स करते हैं। आई हैव गॉट दिस पिक्चर विथ मी, ओके। नाउ व्हेन ही गोज डाउन, holding this position itself is challenging. If you see to it, 90 degrees में अगर एक बंदा रुक जाए, ठीक है, for more than 20 seconds, 30 seconds, 1 minute, it's very difficult. And अगर कोई प्लेयर इतना सक्षम है कि वो 1 minute भी अच्छे से रुक जाता है, you can add weight डिस्क जो होती है, वेट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, उनकी लैप पे रखना है और उनको वो पोजीशन को मेंटेन करना है। दिस एक्सरसाइज कम्स अंडर स्टैटिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग। आप क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की स्टैटिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, क्योंकि इसमें तो ये एक्सरसाइज में, ये पिक्चर में तो मूव कर रहा है, बट व्हेन इट इज इनटू स्टैटिक, द पेशेंट विल सिट and then it will take the weights. Next is this exercise. So if you see, it is a jump squat. This is also used for stability, improving stability of the exercise for the knee joint and the ankle joint. Okay, so ये hold कर रहा है, हम क्या करते हैं, जंप करते हैं नीचे जाते, जंप करते हैं नीचे जाते, जंप कर, बट इसमें व्हाट आई वुड सजेस्ट, अगर जंप करके नीचे गया बंदा, होल्ड दैट पोजीशन, होल्ड फॉर 10 seconds, 20 seconds and then jump again. That would again come into endurance plus joint stability. दोनों टर्म्स इसमें आपकी क्लियर हो जाएंगे। जहाँ पे भी होल्ड आता है ना, दैट इज स्टैटिक एंड्योरेंस, जॉइंट स्टेबिलिटी में अच्छा होता है वो। नेक्स्ट इज प्लैंक वेरिएशंस। आपको नॉर्मल प्लैंक तो पता ही होगा, लेकिन ये जो मैं आपको प्लैंक बता रही हूँ, इसमें हमारी कोर
back, quadriceps, hamstrings, calves, full back portion and shoulders, सब कुछ ट्रेन होता है. Normally it is said plank is the best exercise for full body workout. So plank में आप जितना variations दे सकते हो players को उतना variations दो, आपके सारे muscles का endurance training हो जाएगा, strength training हो जाएगा. This is one variation of the plank, and this is the another one with the weights. So here you can take a less weight and you can repeat it for more. Players हमारे बहुत सक्षम है, कर लेंगे अच्छे से. There are many such variations. Now we go towards the hamstring. This is a basic ones. Basic hamstring control जो हम जिम में normally ये position में जिम में करते हैं, ठीक है. So ये weight ball है, जिम बॉल बोल सकते हैं इसको. इसमें वेट होता है एंड वी कैन गो टूवर्ड्स द हैमस्ट्रिंग. विदाउट वेट्स हम ये कर सकते हैं. अगर इसमें हमको स्टैटिक एंड्योरेंस ऐड करना है हैमस्ट्रिंग मसल का, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली पोजीशन पे होल्ड कर देंगे, नीचे जाएंगे नहीं, ऊपर जाएंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स, एंड्योरेंस को ट्रेन करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे. ऐसे सेट फिर आप बढ़ा सकते हो. So this is a basic hamstring. Let's go towards the advanced hamstring. This is the advanced hamstring. तो जब आप स्टेबल सरफेस पे कोई भी एक्सरसाइज करते हो वो बेसिक हो जाता है. जब आप मूवेबल सरफेस पे, अनस्टेबल सरफेस पे कोई भी अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, दैट गोज इनटू द एडवांस ट्रेनिंग. सो ये दोनों भी हमारे अनस्टेबल सरफेस है, और इस अनस्टेबल सरफेस पे बैलेंस करना इज वेरी डिफिकल्ट. अगर उसकी कोर स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी तो ही प्लेयर ये चीज कर पाएगा. टेक्स वाला फिर भी थोड़ा सा इट लुक्स लाइक इजी बट इट्स नॉट. ऑफ कोर्स इसमें आपकी कोर, बैक, हैम्स, काफ्स सब कुछ आ जाएगा. एंड वन लेग वाला उससे भी ज्यादा एडवांस है. Next is abdominals, obliques. Do not forget to train obliques. Left side पे it is the normal one, and right side पे it is with the weights which we already do. अब इसमें ही अलग अलग directions में, अगर ये बॉल मैं मेरे हाथ में ले लूं और अलग अलग directions में प्लेयर को बोलूं चलो कम अप, ओके, हाथ इधर हेड के पीछे, कम अप. And wherever if I throw the ball on the right side, the player will catch the ball on the right, and if on the left, will catch on the left. So ऐसे हम obliques भी different direction में core के साथ involve करके उसको train कर सकते हैं. Now joint stability जो normally एक new term है हमारे लिए. Joint stability के लिए stable surface पे आप कर सकते हो. Starting में one leg standing on a stable surface. Here I have used a Bosu ball. This is called as a Bosu ball. B-O-S-U. Bosu ball. यही एक्टिविटी अगर मैं इनको ग्राउंड पे करने बोलूंगी तो ये इजीली कर पाएंगे. ठीक है. दिस इज अ जॉइंट स्टेबिलिटी एक्सरसाइज फॉर एंकल ट्विस्टिंग एंड फॉर नी ट्विस्टिंग. So if I ask him to close his eyes and if I ask him some questions, he won't be able to do the same exercise on the floor. Okay. The floor is the basic one. Once he goes onto the Bosu ball, this is an unstable surface. यहाँ पे it becomes challenging for him. यहाँ पे आप कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट कर सकते हो. जैसे कि अगर हेड वाला आप लेते हो, जैसे सर्विस लेते हो हेड पे, हेड से भी हिट करते हो बॉल को, so that thing also you can take with both the legs together or with one leg at a time. This one is in movement. This is static. This is dynamic. Dynamic is with movement. This is a higher version. Again, you can create many things. ये भी बोसू बॉल है. ये बोसू बॉल को सीधा रखा हुआ है. यहाँ पे बोसू बॉल को राइट हैंड साइड में ऊपर बोसू बॉल को उल्टा रखा हुआ है और उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं. सीधा फिर भी बहुत ज्यादा स्टेबल है, उल्टा और भी ज्यादा अनस्टेबल है. जितना आप अनस्टेबल की तरफ जाओगे उतना ही चैलेंजेस आपके बढ़ते जाएंगे. कोई भी एक्टिविटी आप बोसू बॉल पे कर सकते हो.
इस तरीके से। नेक्स्ट इज फॉर काफ मसल, दिस इज अगेन अ बोसू बॉल। स्टैटिक स्टेबिलिटी के लिए वी आर डूइंग हील रेजेस ऑन द बोसू बॉल। ठीक है, ग्राउंड पे तो हर कोई कर लेता है, वेट लेके तो हर कोई कर लेता है, लेकिन बोसू बॉल पे यही चीज जब आप करने लगते हो, आपका बैलेंस भी चेक होता है, आपकी जॉइंट स्टेबिलिटी चेक होती है, एंड्योरेंस, सब कुछ यहाँ पे बोसू बॉल पे आपका चेक होता है। एंड दिस अदर वन इज ऑल्सो बॉल है, इसमें वेट हो सकता है और इसके साथ आप हील रेजेस करो। इसमें आपकी दो मसल्स काम करेंगी, एक तो क्वाड्र से काफ मसल्स तो कर ही रही है, उसके साथ अडक्टर्स भी काम करेंगी, इनर थाई मसल्स और फुट मसल्स सारी काम करेंगी। Now another important thing is posture, which is a very big term. हर एक प्लेयर का अलग अलग पोस्चर होता है। ठीक है, मेडिकली हम देखते हैं हर एक प्लेयर का अलग अलग पोस्चर होता है। जितनी भी मैंने आपको अभी एक्सरसाइजेस दिखाई है वो एक जनरल एक्सरसाइजेस है जो कि हम हर किसी पे कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पिक्चर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ इसमें अलग अलग टाइप के पोस्चर्स है। सबसे एक्सट्रीम राइट में जो पोस्चर है दैट इज अ गुड पोस्चर। जब हम धीरे धीरे लेफ्ट में जाने लगते हैं वी गो टुवर्ड्स अ बैड पोस्चर। ठीक है, अब इधर ना थोड़ा सा एग्जैजरेट करके पोस्चर को दिखाया गया है। ओके, इट इज शोन इन एन एग्जैजरेटेड वे। तो दिस वी नीड अ मेडिकल प्रोफेशनल टू कैरी आउट कि इसमें एक प्लेयर में कहाँ पे एग्जैक्टली पोस्चरल डिफेक्ट है। ये तो मैंने आपको एक्सट्रीम दिखाया है, यहाँ पे बहुत माइनर लेवल पे ये पोस्चरल डिफेक्ट्स होते हैं, हर एक प्लेयर में होते हैं। सो हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं कि इनके पोस्चर को सबसे पहले असेस करते हैं कि इनके पोस्चर में कहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और उस हिसाब से उनको वो सारी एक्सरसाइजेस देते हैं। इफ सपोज अगर ये एग्जाम्पल मैं ये वाला बंदा दे दूं अगर आपको, आई होप यू कैन सी द एरो। अगर ये वाला बंदा दे दूं, ठीक है, इसका ये ज्यादा दिखाया है यहाँ पे, अगर हमारे पास थोड़ा भी हुआ तो भी इसकी अफेक्शन उसकी गेम पे दिखेगी, इसके पोस्चर की अफेक्शन उसके गेम पे दिखेगी। तो अगर आप इस पोस्चर को एनालाइज करें तो ठीक है, तो कोर आपकी बैक मसल्स बहुत ज्यादा टाइटनेस में है, कोर बहुत ज्यादा वीकनेस में है, और इसके साथ साथ आपकी ये जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है ये हैमस्ट्रिंग मसल्स लेंथनिंग में है और ये शॉर्टनिंग में है। अब इस पेशेंट आई मीन इस प्लेयर को अगर मैंने हैमस्ट्रिंग को ज्यादा स्ट्रेच कर दिया और क्वाड्रिसेप्स पे ज्यादा स्ट्रेंथ दे दिया तो क्या होगा, इसकी दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी रॉन्ग एक्सरसाइजेस हो जाएगी इसकी, इस स्पेसिफिक बंदे के लिए। यहाँ पे इस पोस्चर के हिसाब से मुझे हैमस्ट्रिंग को ज्यादा ट्रेन करना चाहिए और क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेचिंग ज्यादा देनी चाहिए। बट अगर मैंने यहाँ पे वाइस वर्सा कर दिया तो दिक्कत बढ़ जाएगी, इसको दिक्कत इसकी गेम पे उतना ज्यादा अफेक्शन हो जाएगा। तो एक्चुअली इस प्रोसीजर के लिए आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प लगती है, एक फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लगती है टू सेग्रीगेट द पेशेंट्स प्लेयर्स, आई मीन to segregate the players according to their posture, which player has which kind of posture and on which area he is playing, uske hisab se everything will go on. Now role of a physiotherapist in a on field पे क्या क्या काम होता है फिजियोथेरेपिस्ट का। आप एज अ कोच कब फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट को कब आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले है इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ द प्लेयर। इंडिविजुअल असेसमेंट में यही होता है कि हम पूरे प्लेयर को पहले उसका पोस्चर चेक करते हैं, उसकी कौन सी मसल टाइट है, उसकी कौन सी मसल रिलैक्स है, कौन सी मसल ज्यादा लेंथनिंग में है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है कि नहीं, उसके पोस्चर के हिसाब से वो कहाँ लाए करता है, किस एरिया में वो गेम खेल रहा है, कौन से पोजीशन पे खेल रहा है, वो सब असेसमेंट हम फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। रिलेटिंग प्लेयर्स बॉडी मैकेनिक्स, मतलब अभी जो भी मैंने कुछ अभी आपको बोला कि बॉडी का जितना भी मैकेनिज्म है एंड इट्स रिलेशन विद द पोजीशन इन द गेम। इसका मतलब कि
प्लेयर का क्या फिजिकल असेसमेंट मैंने लिया है, उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को, उसके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप उसकी पोजीशन ऑफ द गेम में, कि मेरे प्लेयर में फॉर एग्जांपल मेरे प्लेयर का क्वाड्रिसेप्स मसल वीक है, ठीक है, उसका कोर मसल वीक है और वो टेकॉन के प्लेस में खेल रहा है या वो फीडर के प्लेस में खेल रहा है, तो अब क्या होगा, I have to more work upon his posture, I have to more work upon his the muscles which are already into weakness. So कई बार हम इस चीज को भी इग्नोर कर जाते हैं कि बायोमैकेनिक्स का रिलेशन कौन से पोजीशन में बंदा खेल रहा है उसके बेसिस पे भी करना चाहिए. Next is accordingly prescribe exercise for performance enhancement. As I said, we check all the things, we relate it with the game, and then we prescribe exercises for one specific individual. एक इंडिविजुअल के लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है. ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोटोकॉल हम सब पे यूज करेंगे, ऐसा नहीं है. इंडिविजुअल असेसमेंट किया है, उस हिसाब से ही उसकी एक्सरसाइजेस आएगी. नेक्स्ट इज करेक्शन ऑफ बायोमैकेनिक्स. वही जो कोई भी दिक्कत है उसमें उसको करेक्ट करने, उसको इन्फॉर्म करना, उसको इस चीज के बारे में नॉलेज देना और उसको हेल्प करना उस चीज से. प्रिस्क्राइबिंग एक्सरसाइज फॉर इंजरी प्रिवेंशन. आप इंजरी प्रिवेंशन की जितनी भी सारी एक्सरसाइजेस है वो हम एक जनरल प्रोटोकॉल पे एक जनरल क्लास की तरह उसको ले सकते हैं, उसकी नॉलेज हम प्लेयर्स को दे सकते हैं. Keeping a check on strength and conditioning of the players in players muscle. As हमारा कैंप आगे बढ़ता है, हमारा साल आगे बढ़ता है, तो अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास लॉन्ग टाइम से है तो उसके पास एक्चुअली आपके प्लेयर का पूरा ABCD है. अगर एक साल अगर आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट ने स्पेंड कर दिया आपके साथ तो सब डिटेल उसके पास है और उसका ग्रोथ चार्ट कैसे डेवलप होता है फिजिकली, साइकोलॉजिकली और परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट वाइज, उसका सारा डिटेल आपको फिजियोथेरेपिस्ट प्रोवाइड कर सकता है. अब ऑन फील्ड तो ये हो गया. ऑफ फील्ड हम क्या क्या करते हैं? रिहैबिलिटेशन ऑफ इंजरीज को, अगर इंजरी हो चुकी है अब इंजरी को हम ट्रीट करते हैं, ठीक है, उसको रिहैबिलिटेट करते हैं. ट्रेनिंग फॉर परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट स्टेप बाय स्टेप. अगर प्लेयर इंजर हो चुका है डायरेक्टली तो वो गेम में नहीं जा सकता, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसको गेम में जाने के लिए प्रिपेयर करना. प्रोवाइड एम्पैथी टुवर्ड्स द प्लेयर फॉर गेम्स पोस्ट इंजरी. मतलब जब प्लेयर को इंजरी होती है तब नॉर्मली व्हाट हैपेंस, अ प्लेयर इज ऑलवेज डिप्रेस्ड. Okay, psychologically also he feels that, oh okay, now I've got the injury, now I have lot of things, I have long time to go. A player is actually depressed and feels bad about himself. So a physiotherapist provides empathy towards the player, that is he motivates the player according to his actual strength and capabilities, make him aware about his strength and capabilities, and then bring him out of that situation to the field again to perform in the better way as he used to do before. Provide precautionary techniques for prevention of injuries. So प्रिकॉशनरी टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है वो भी हम प्लेयर्स को बता सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल टेपिंग हम यूज करते हैं या बैंड्स यूज करते हैं, तो उस टाइम पे हम ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं कि प्लेयर जब हमारा गेम खेलने जा रहा होता है हमें पता होता है कि मेरे प्लेयर को नी में इंजरी हो चुकी है, तो उसको इंजरी होने के चांसेस है, फिर से उसको इंजरी होने के चांसेस है, क्यों ना मैं उसको अपनी टेक्निक्स अप्लाई करके पहले से ही उतना स्टेबल कर दूं और फिर वो जाए, ताकि ऑन फील्ड अगर उसको झटका भी आता है नी पे तो वो उतनी उसकी मेरी टेक्निक्स उसके ऊपर इफेक्टिव रहे और उसको इंजरी ना हो. तो प्रोवाइड प्रिकॉशनरी टेक्निक्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंजरी. आई थिंक अगेन ये रुक गया है. Just a second.
प्रोवाइड फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। जब हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनल जाते हैं या कोई भी क्वालिफाइंग मैचेस के लिए जाते हैं तो उनको एक फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लगता है जो फिजियोथेरेपिस्ट प्रोवाइड करता है। उसकी स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी, उसकी इंजरी, सारा कुछ डिटेल उसमें दिया हुआ होता है, तो वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड कमेंट ऑन फिजिकल, मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल फिटनेस ऑफ एन एथलीट। मतलब normally many a times it happens that coaches ask when they are selecting the players, at that time they ask whether a player is physically, mentally and psychologically fit. At that time we just give a comment that we have seen this player developing in this way, and I think that whatever the comment is, ठीक है। सो एक वो कमेंट भी हम देते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। So I hope you have enjoyed my webinar, and I hope you have understood all the things. And one special request is that I would like कि आज जो भी मैंने आज आपको इस प्लेटफॉर्म पे बताया है, काइंडली हमारे बच्चों में, हमारे सेपेक टाकरो प्लेयर्स में वो छोटे लेवल से ही स्टार्ट करें। मतलब जब प्लेयर डेवलप हो रहा है उसी लेवल से धीरे धीरे करके ये सारी इंफॉर्मेशन उनको पास ऑन करें, ताकि वो और ज्यादा डेडिकेटेड हो सके। बिकॉज मैंने बहुत सारे नेशनल कैंप्स अटेंड किए हैं और मैंने ये एक चीज नोटिस करी है सब में कि बहुत सारे प्लेयर्स को अपने खुद की बॉडी के बारे में इतना ज्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं होता। अगर हम और इसी आई थिंक इसी रीजन की वजह से हम थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। I just want that all this information should be passed on to the players right from the junior level, so that they can take their own responsibility of their physical, mental and overall development. So thank you so much. Thank you everyone.